محمود خان چکدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. زبشکائے بار زبشکائے بار زبشکائے بار محمود خان محمود خان محمود خان محمود خان زبشکائے بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی بیٹھیے, مہربانی مہربانی کھیت. پی ڈی ایم کے محترم رہبر, محترم رہنما, بقول جمعیت علماء اسلام, امام انقلاب محترم فضل الرحمان صاحب, پیپلز پارٹی کے معزز دوست گیلانی صاحب, راجہ صاحب, مریم بی بی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ, جناب اختر جان مینگل صاحب, ڈاکٹر عبد المالک صاحب, جناب آفتاب خان شیفا صاحب, اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے بہادر کارکنوں, جی پلیز. میں سب سے پہلے اس صوبے کی تمام پارٹیوں کے ان کارکنوں کا جنہوں نے محنت کر کے دور دراز کے پشتون اور بلوچ علاقوں کے اتنے کثیر کارکنوں کو یہاں پہنچایا, اور ہمارے مشترکہ مہمانوں کی قدر کی, اس پہ میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور خدائے بزرگ و برتر سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اتحاد, ہمارا یہ اکٹھ اور ہمارا یہ جمہوری کاروان رواں دواں رہے. وقت کم ہے, لیکن آج مجھے یقین ہے آپ کی اس کاوش, آپ کی اس محنت کے نتیجے میں جو ہمارے اکابرین وفات پا چکے ہیں, مولانا مفتی محمود صاحب, غوث بخش بزنجو صاحب, خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی, اور سب سے بڑھ کر خان عبدالغفار خان بادشاہ خان, عطا اللہ خان زندہ ہیں, وہ آپ کی اس محنت سے ان کے ارواح خوش ہوں گے کہ کم سے کم ہمارے محنت کے نتیجے میں ہمارے کارکن جرت اور ہمت سے حق گوئی اور بے باکی کی اس جد و جہد میں ایک ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے چل رہے ہیں. خدا کرے ہماری اس احتیاط کو نظر نہ لگے. میں تقریر شروع سے کرنے سے پہلے 2 نعرے لگاؤں گا. ہر بوڑھے نے, ہر جوان نے, ہر خاتون نے, ہر مرد نے اس کا جواب دینا ہوگا. پہلا نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر, میں بولوں گا. دوسرا ہوگا انقلاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر, زور سے نعرہ تکبیر. انقلاب. نعرہ تکبیر میں نے اس لیے لگوایا, میں لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا. جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر, اصل میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں
اس دنیا میں صرف ایک قوت کو جانتا ہوں, صرف ایک طاقت کو جانتا ہوں, اس کے علاوہ نہ میں کسی طاقت کو پہچانتا ہوں نہ میں کسی قوت کو پہچانتا ہوں. اسی لیے وہ شاہد اقبال نے کہا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمارے کارکن جمعیت علماء اسلام کے ہوں, پشتونخوا ملن پارٹی کے ہوں, ANC کے ہوں, اختر جان مینگل کے ہوں, مالک کے ہوں, ان کی ہم نے یہی تربیت کرنی ہے. مرد کا سر دو جگہوں پہ جھکنا چاہیے. ایک جب وہ جیسے میرے ساتھی نماز پہ کھڑے ہیں, یہاں آدمی کا سر جھکنا چاہیے, اور ایک جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ غسل کے تختے پہ ہوتا ہے. ان دو جگہوں کے علاوہ مرد کا سر اگر جھکتا ہے وہ مرد نہیں ہے, وہ مرد نہیں ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اس صداقت پہ. ہمارے کارکنوں کی تربیت یہ ہے, جہاں بھی ظلم, مظلوم اور ظالم کی جنگ ہوگی, ہمارے کارکن مظلوم کے ساتھ ہوں گے, چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو. ہمیں بات بات پہ تانے دیے جاتے ہیں, یہ قوم پرستی کو ہوا دیتے ہیں, یہ زبان کی بات کرتے ہیں, یہ فلانا کرتے ہیں. بابا ایسے نہیں ہے. قرآن کریم گواہی دیتا ہے, قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں. قرآن کریم گواہی دیتا ہے کہ میں نے کوئی بھی مسلح, کوئی بھی پیغمبر, کوئی بھی رسول کسی قوم کے پاس اس کی زبان کے بغیر نہیں بیچا. جب قرآن کریم کہتا ہے باللسان قومی ہی, میں نے قرآن کریم محمد عربی کو کہتا ہے, میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے. دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں. ہاں, ہم شاونش قسم کے قوم پرست نہیں. ہمارے کارکن ہر انسان کو انسان سمجھتے ہیں. ہم انسان سے اس بنیاد پہ کہ اس کی زبان کیا ہے, وہ کس مسلک کا ہے, وہ کس رنگ کا ہے, وہ کون سا کہاں کا رہنے والا ہے, ہم اس بنیاد پہ انسان سے نفرت کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. زمانے پروردگار نے دی ہیں. میں بھول رہا ہوں, شاید سورہ روم میں ہو, میں بھول رہا ہوں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچے ایک زبان نہیں بولتے. اور پھر زبانوں کے اسلام کے طور پہ جو 4 کتابیں ہمارے پاس ہیں, اللہ پاک نے 4 کتابیں مختلف زبانوں میں بھیجی ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان وقت تھوڑا ہے, میں اپنا وقت مولانا صاحب والوں کو دینا چاہتا ہوں, جلدی کچھ بولوں گا. پاکستان ایک جمہوری فیڈریشن ہے. یہاں کوئی کسی کا آقا یا غلام نہیں. 13 اگست 1947 کو ہم پاکستانی نہیں تھے. کیا پھر ہمارا کوئی وجود نہیں تھا؟ ہم کچھ تھے. ہمارے مدر وطنوں کے ہم رہتے تھے. ہم پنجابی تھے, بلوچ تھے, سندھی تھے, سرائکی تھے. ہم اپنے مدر وطن پہ رہتے تھے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے. اس کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی. پاکستان کے تمام ادارے, جوڈیشری, بیوروکریسی, ملٹری, جاسوسی ادارے سب اپنے اپنے دائرے میں ہوں گے. ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا. بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کی حکمرانی ہوگی اور بلوچ وطن میں پیدا ہونے والے نعمتوں پہ آئینی طور پہ ضمانت دی جائے گی, دینی چاہیے, دینی ہوگی کہ اس پہ پہلا حق بلوچ بچوں کا ہے. یہی حال پشتونخوا وطن کا. پشتونخوا وطن کے نعمتوں پہ پہلا حق وہاں بچنے والے بچوں کا ہے, وہاں کے لوگوں کا ہے, چاہے جو بھی نعمتیں ہوں.
पार्लियामेंट वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। दाखिली और खारिजी पॉलिसियां वहां से निकलेंगी। जो कुछ हुआ परसों, जो कुछ कराची में हुआ, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। एक महीना पहले लेडी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू दिया है, कोई भी पढ़ा लिखा वहां पढ़ सकता है, देख सकता है। मैं अंग्रेजी से उर्दू में उसका तर्जुमा बाद हिस्सों का आपको बताता हूं। वो क्या कहती है? उसने इंटरव्यू में कहा डीप स्टेट, गहरा स्टेट, गहरा, और उसको तुर्की में कही दरीन दौलत, दरीन इस तरह उसको की डीप स्टेट की इस्तिलाह सियासी दानवशरू ने पाकिस्तान जैसे मुल्कों में राइज निजाम की वजाहत करने के लिए वजह की है। ये लेडी क्लिंटन देती है, इंटरव्यू है, वीडियो, जहां बुनियादी तौर पर फौज और जासूसी इदारे मुल्क को चलाते हैं। बज़ाहिर तो आप मुंतखब होकर आते हैं, लेकिन अगर आप फौज और जासूसी इदारों को पसंद नहीं होते या उनके अमल दखल को कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, या कोई फर्द जुर्म आयद किया जा सकता है, और यहां तक कि आपको कत्ल किया जा सकता है या आपको फांसी लगा दी जा सकती है। ये लेडी क्लिंटन देती है। बात ऐसी अफवाहें हैं, वक्त तोड़ा है, वक्त तोड़ा है। अब बाज लोगों को मार देना चाहिए, ये जो बातें कर रहे हैं इनको मार देना चाहिए। तो अब मार देने से आपने कौन सा फायदा उठाया? आपने बादशाह खान जोश अदम तशद्दुद का प्रचारक था, अंग्रेजों के वक्त की तकलीफें तो गई, उसके जलसे पे आपने हमला कराया, दर्जनों सैकड़ों लोगों को कत्ल किया। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को एक ऐसे फैसले के नतीजे में फांसी चढ़वाया जिसकी पीएचडी में कोई वकील कदर नहीं करता। आपने अताउल्लाह मेंगल के बच्चे को, जवान लड़के को, अख्तरजान छोटा था उस वक्त, आपने कुछ नहीं भी किया। आपने अताउल्लाह खान मेंगल के बड़े बेटे को कत्ल किया, उसकी कब्र का पता नहीं चला, वो पता नहीं कहां चला गया। आपने क्या क्या नहीं किया। आपने मौलाना को, आपसे मेरा जो भी है, आपने मौलाना साहब पे 3 हमले करवाए, वो अल्लाह के फजल से बच गए। शेर साहब को अपने कत्ल करने की कोशिश की, आपने अस्फंदियार के घर में घुसकर उसको मारने की कोशिश की। ये तमाशा नहीं चलेगा। पश्तून वतन में, पश्तूनख्वा वतन में, बलोच वतन में, इस्लाम में कत्ल के सिर्फ दो वजूहात हो सकती हैं। कुरान करीम भी इसमें गवाही देता है। अगर किसी ने किसी प्यारे को कत्ल किया हो, उसका इंतकाम लोग लेते हैं। या अगर खुदा न खास्ता कोई किसी के घर घुस जाए, किसी की बेइज्जती करे, उसको कत्ल किया जाता है। इसके बगैर हमारे बुजुर्गों को या हमें इतना कमजोर मत समझो, हमें मजबूर मत करो, हमें दीवार से मत लगाओ। खुदा न खास्ता कि हम ये कह दें कि हमने पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना नहीं है। हमने इन बहादुर बच्चों की ताकत पे फिर भरोसा करना होगा। ये मुजाहिदीन, ये बहादुर बच्चे, ये आग में झोंकेंगे, आपको खुद आग में घुस जाएंगे। हम वो नहीं चाहते। हम पाकिस्तान को एक फेडरेशन बनाना चाहते हैं। उस फेडरेशन में ताकत का सरशिमा पार्लियामेंट होगी। बड़ी मुश्किलों से 18वीं तरमीम पास हुई है, बड़ी मुश्किलों से कुछ गुजारा हुआ है, उसको लपेटने की बात हो रही है। जिस दिन आपने 18वीं तरमीम को हटाने की कोशिश की, जिस दिन आपने हमारे सूबों में ये जो जुल्म आप कर रहे हैं ये जारी रखने की कोशिश की, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें आप मारते हैं और फिर हमें ताने देते हैं। वजीरिस्तान, स्वात से लेकर खैबर तक ये आपके मुफ्त के सिपाही थे। 1 लाख अफराद मलेशिया में देते हैं। अब भी
आपने स्वात से लेकर स्वात के बहादुर लोग जो छुरी को नहीं जानते थे, जो पिस्तौल को नहीं जानते थे, जो बंदूक को नहीं जानते थे, वहां से लेकर खैबर तक आपने दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया। आपने वजीरिस्तान में चचन, उज़्बक, ताजिक, अरब इनको जमा किया और फिर इन्हीं के जरिए हमारे बहादुर मसूद बोलो वजीर अफरीदी शिरवारी, हमारे जिरगा में मरान 1200 से ज्यादा आपने कत्ल किए। फिर भी हमसे गिरा कि हम वफादार नहीं। बादशाह खान के कारकुनों ने आज तक नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने आज तक नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी, अख्तर वेंगल की पार्टी, मालिक की पार्टी, दूसरी सियासी पार्टियों ने आज तक पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। आप जिस नजरिए को पाकिस्तान का नजरिया कहते हैं चालाकी से, पाकिस्तान का नजरिया पश्तूनों का मकरूज है। पाकिस्तान का नजरिया बलूचों का मकरूज है। पाकिस्तान का नजरिया सिंधियों का मकरूज है। आपने बादशाह खान की तारीख के कारकुनों को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो वोट चाहते थे, वो इफ्तिहार के मुखालिफ थे, वो यहाँ एक जमहूरी निजाम चाहते थे, एक फेडरेशन चाहते थे, आपने हजारों कारकुनों को जेलों में ठोक दिया, लाखों साल अपने में जेल दी। आपने अख्तर मेंगल से मेरी मुराद बलोच सियासी तारीख से क्या नहीं किया। अब तमाशे हो रहे हैं। वजीरिस्तान में 1200 जमीयत उलमा इस्लाम के बेहतरीन बहुत सारे उलमा को, मौलवी नूर मोहम्मद, मौलवी मेराजुद्दीन, बहुत सारे दूसरे लोग मारे गए। एक कमाल है, आप हमें मारे, बलोचों को भी, सिंधियों को भी, पश्तूनों को भी, उलमा को भी, फिर हमसे ये तवक्को कि हम आपके डोल पे अटन करेंगे। हम कमजोर होंगे, इतने बेगैरत नहीं है कि आपके डोल पे नाचते रहें। आपके डोल पे हम नहीं नाचेंगे, फिर हम अपना डोल बजाएंगे, और जिस दिन हमारा डोल बजा दुनिया के कान फट जाएंगे, दुनिया को जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हम उस इंतहा तक नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान हमारा मुश्तरका मुल्क है। हमें ये मत कहो कि गांधी जी बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना हमारा फाउंडर है, वो बहुत बड़ा आदमी है। हमें ये मत कहो कि इन दो ने आजादी दिलाई हो इस वतन को। हम माफी चाहता हूं, हम ये किताबों से साबित कर सकते हैं। ये दो अफराद पैदा भी नहीं हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब इनके अकाबरीन पहाड़ों में, मैदानों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। हम लाए हैं मौलाना अब्दुल रहीम पोपलजाई, काका सनोबर हुसैन मोमन, उमराव खान अफजंदोल, मेंगल अपने मर्री मेंगल झालावान के मेंगल और हमारे मरी उस वक्त लड़ रहे थे। यह कहा जा रहा है कि जी वो फलाने का, गांधी का फलाना है। बाबा पहला कैदी एफसीआर का खान अब्दुल गफ्फार खान था, उस वक्त जब उन्होंने गांधी जी को देखा भी नहीं था। उसके 10 साल बाद उसी दफे के तहत जनूबी पश्तूनख्वा में, ब्रिटिश बलूचिस्तान में अब्दुल समद अचकजई उसी एफसीआर में गिरफ्तार हुआ। हमने न गांधी के लिए आजादी जंग लड़ी है, न किसी और के लिए। हमारे अकाबरीन उलमा समेत हम हक गोई और बेबाकी के सिपाही हैं। हम अल्लाह के जमीन पे ऐसा निजाम चाहते हैं जो इंसाफ में मुबनी हो, जहां किसी तबके का तबके पे जुल्म ना हो, जहां किसी कौम का कौम पे बलादस्ती ना हो। ना हमें मरियम बीबी, ना हमें पंजाब से वो है। आपको ये सुनकर मरियम बीबी दुख होगा। नवाब नौरोज खान अयूब खान के दौर में
हकूक के लिए पहाड़ों पे चढ़ा था। मरियम बीबी उसे कुरान का वास्ता दे के उतारा गया, कुरान का वास्ता दे के उतारा गया और मत जेल में उसको 6 बच्चों समेत फांसी दे दी, कुरान का वास्ता दे के। फिर भी हमसे आप गिला करते हैं कि हम पाकिस्तान को, नहीं, हम पाकिस्तान को खराब करना नहीं चाहते, लेकिन हम पाकिस्तान में, जिस तरह अख्तर जान ने कहा, हम पाकिस्तान में बराबर के शहरी होंगे। और एक बात मेरे भाई, मेरे दोस्त ने की, हैदर भाई ने बहुत अच्छा कहा, बलूचिस्तान में पश्तून और बलोचों को मुश्तरका जो करनी होगी। जी, यहाँ भी बराबरी होगी, यहाँ भी पश्तून बलोच बराबर होंगे, शाल होंगे, पाकिस्तान में भी पश्तून बलोच सिंधी बराबर होंगे, फिर सब कुछ जिंदाबाद रहेगी बात। एक बात माफी चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, ड्यूरेंट लाइन, बस सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट। ड्यूरेंट लाइन 1893 में खींची गई, तफसील मैं नहीं जानता, ये फिर कभी इंशाल्लाह। अभी जायदान से लेकर जायदान से लेकर फिर कमरदीन तक ये लाइन पश्तून और बलूच वतन को तकसीम करती है। हमारा प्रॉब्लम ये है, मरियम बीबी आप समझने की कोशिश करें, पीपल पार्टी वालों आप समझने की कोशिश करें, 1893 से लेकर अब तक जो अब उस पर बाढ़ लगाई जा रही है, 122 साल, इस पे हमारे काफिले बादीनी बलोचों के, संजरानी के, मेंगल के, बड़ेज के, पठानों के, अशकजइयों के, काकड़ों के, इस्तेमान खेलों के आते जा रहते थे। हमारी जमीनें अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में थोड़ी है। बड़ेज कबीले की जमीन अफगानिस्तान के अंदर 20 मील दूर है, संजरानी की इसी तरह है, बादीनी की इसी तरह है, जकर मेंगल की इसी तरह है, अचकजई की इसी तरह है, काकड़ की इसी तरह है, इस्तेमान खेल की इसी तरह है। इधर हम जाते रहते थे, अब आप लोगों ने बाढ़ लगा दी। हम अपने जमीनों पे पासपोर्ट पे जाएं, हम अपने जमीनों पे वीजा लें। चमन से और तोरखम से तकरीबन रोजाना मरियम बीबी 80,000 अफराद सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे। इनका रोजगार उनसे खुद था। अब इससे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये पाबंदियां में मंजूर नहीं है। हम अपने जमीनों में पासपोर्ट लेकर, वीजा लेकर नहीं जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता, मैं बूढ़ा भी हो गया हूं, थोड़ा पता नहीं क्या हो गया हूं, अगर हमें मजबूर किया गया, हम दोनों तरफ के पश्तूनों से कहेंगे कि इस तार को उखाड़ फेंको, इस तार को उखाड़ फेंको, जिधर फेंकना है वहां फेंको। रही ड्यूरेंट लाइन वो है, वो रहेगी, हमें न छेड़ो। हम